یہ کہانی ہے ایک ایسے ٹاؤن کی جہاں بھوتوں اور مونسٹرز کا راج ہے اور یہاں پر پراسرار واقعات کی ایک طویل تاریخ موجود ہے۔ اسی لیے یہ ٹاؤن ٹورسٹ کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے۔ ٹاؤن کے پراسرار واقعات کو جاننے اور اسکوبی ڈو اور گینگ کے کارنامے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔ اب ہم چلتے ہیں اسکوبی ڈو مسٹری انکارپوریٹڈ سیزن 1 ایپیسوڈ 1 کی جانب۔ ایپیسوڈ کا آغاز اسکوبی ڈو اور گینگ کے بچوں کے پرمسرت اور پرجوش موڈ سے ہوتا ہے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے ایک زبردست مسٹری کو سالو کیا ہوتا ہے۔ لیکن ان کی اس خوشی پر اس وقت پانی پھر جاتا ہے جب ایک پولیس آفیسر انہیں جیل میں بند کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ان کے پیرنٹس کو کال کر دیتا ہے۔ اس پر بچے بہت افسردہ ہو جاتے ہیں۔ اس پر ڈیفنی کہتی ہے کہ کاش کوئی ایک بار ہی ہمارے مسٹری سولو کرنے پر ہمیں تھینکس کہتا۔ فیرڈ، جو گینگ کے بچوں میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس سین کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے سین میں ویلما کرسٹل کوو میں آئے ٹورسٹ کو ویلکم کہتی ہے اور انہیں کرسٹل کوو کی قرض کے بارے میں بتاتی ہے۔ ویلما انہیں بتاتی ہے کرسٹل کوو کی قرض کا پہلا کیس 1630 میں سامنے آیا جب اسپینش فاتحین کا ایک گیریزن پراسرار انداز میں بندرگاہ سے غائب ہو گیا۔ اس پر ٹورسٹ کہنے لگے یہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔ ٹورسٹ میں سے ایک نے ویلما سے سوال کیا وہ غائب ہو کر کہاں گیا۔ اس پر ویلما برہم ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ کو لفظ مسٹیریس کا مطلب نہیں معلوم۔ اس کے بعد ویلما انہیں بتاتی ہے کہ کرسٹل کوو کی قرض کا دوسرا کیس 1765 میں سامنے آیا جب مسٹریز کا پورا گاؤں ہی غائب ہو گیا۔ پھر 100 سال تک شہر کا ماحول پرسکون رہا اور لوگوں نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ اب ٹاؤن سے قرض اٹھا لی گئی ہے۔ اسی دوران کلیٹس ڈیرو کو یہاں گولڈ ملا اور ٹاؤن کا نام تبدیل کر کے کرسٹل کوو رکھ دیا گیا۔ ابھی لوگوں کے ذہنوں سے ان خوفناک اور عجیب و غریب واقعات کے اثرات ختم ہی ہو رہے تھے کہ ایک ہالووین کو پوری ڈیرو فیملی ہی غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد کرسٹل کو غیر معمولی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کے بعد ویلما چند گوسلی کرداروں کا تعارف کرواتی ہے جن میں کیپٹن کٹلر، مائنر 49 چارلی اسپیس کو شامل ہیں۔ ٹورسٹ اس پر خوف اور حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب ویلما ٹورسٹ کو خوفزدہ ہوتے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ تمام بعد میں جعلی نکلے، اور بتاتی ہے کہ کیپٹن کٹلر صرف بوٹس کو ہائی جیک کرتا تھا، مائنر کا اصل نام ہینک تھا اور چارلی کا تعلق مسٹر جینکنز سے تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پاگل رپورٹ کو دیکھ کر لوگ اس کے پار کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے۔ ویلما انہیں یہ بتا ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کے پیرنٹس اس کی باتیں سن لیتے ہیں، ویلما کو خاموش کرواتے ہیں اور ٹورسٹ کو سنیک شاپ پر بھیج دیتے ہیں۔ پھر ویلما کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمارا بزنس تباہ کر رہی ہو۔ اس پر ویلما کہتی ہے میں تو صرف حقیقت ہی بتا رہی ہوں، آپ لوگ ایسی چیزوں پر یقین کرتے ہوں گے لیکن ہم تو صرف مسٹریز کو سلجھانے اور ٹریپس کو بنانے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سین بدلتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیرڈ کے پاپا اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گینگ کو چھوڑ دے، مگر فیرڈ کہتا ہے ہم تو صرف سوالات کے جوابات ہی تو تلاش کرتے ہیں، اس میں غلط کیا ہے؟ اس پر فیرڈ کے پاپا کہتے ہیں کہ میئر کا بیٹا ایگزامپل سیٹ کرنے جا رہا ہے۔ اس پر فیرڈ کہتا ہے میں تو بس کوشش کر رہا ہوں، بلکہ کل ہونے والے سائنس فیئر میں نے اپنا ایک ٹریپ شامل کیا تھا مگر اس کا سائنس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اس لیے ریجیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد فیرڈ کے پاپا کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی ایسا کام کرو جس پر تمہیں زندگی بھر پچھتانا پڑے۔ اس کے بعد سین بدلتا ہے اور شیگی اور اسکوبی کو دکھایا جاتا ہے۔ شیگی کے پیرنٹس اسے کہتے ہیں کہ تم اپنے دوست تبدیل کر لو۔ اس پر شیگی کہتا ہے کہ آپ لوگ ہماری فکر نہ کریں، ہمیں جہاں بھی کہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے ہم دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر شیگی کہتا ہے اصل میں ہماری گینگ کو مس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہے، اصل میں وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور مسٹریز کو سولو کر رہے ہیں جو کسی دوسرے سے حل نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ڈیفنی کی باری آتی ہے۔ اس کے پیرنٹس اسے فیرڈ اور گینگ کو چھوڑنے کا کہتے ہیں اور اپنا فیوچر اس کی دوسری بہنوں کی طرح رچ اور برائٹ بنانے کو کہتے ہیں، مگر ڈیفنی کہتی ہے فیرڈ تمام دوسرے بوائز سے الگ ہے، وہ ہر چیز کو ڈفرنٹ انداز میں دیکھتا ہے اور اسی کی انٹیلیجنس کی وجہ سے ہم نے کئی مسٹریز کو سولو کیا ہے اور وہ اپنے ٹریپس بھی اچھے انداز سے بناتا ہے کہ دیکھنے والا حیران ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی دوران گاڑی کا ہارن بجتا ہے تو ڈیفنی اپنے پیرنٹس اور سسٹر کو بائے کہہ کر اسکول کے لیے نکل پڑتی ہے۔ اس کے بعد سین تبدیل ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں دو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا باس دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتا ہے تو دیوار گر جاتی ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے تم میں سے کس نے دیوار کو توڑا ہے؟ تو ورکرز کہتے ہیں ہم نے اس دیوار کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ دیوار کے اندر جاتے ہیں اور اندازہ لگانے لگتے ہیں کہ یہ جگہ کیا ہے۔ ان ورکرز میں سے ایک اسے سیور خیال کرتا ہے۔ ان کا باس کہتا ہے کرسٹل کوو میں صرف ایک ہی سیور ہے اور انہیں بتاتا ہے یہ کرسٹل کوو کیوز ہیں۔ وہ تینوں ورکرز
केव्स के जरा अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ डेंजर लिखा हुआ दिखाई देता है। वर्कर्स का बॉस कहता है डेंजर का मतलब है यहाँ जरूर कोई खतरनाक चीज है। एंड वहीं पर 4 ड्रम पड़े होते हैं। इन ड्रम्स में ग्रीन मटेरियल होता है। फिर इनमें से एक कहता है मुझे लगता है इसमें कोई चीज है। इसके बाद वो सब ड्रम खोलने का फैसला करते हैं और आखिरकार ड्रम को खोल देते हैं। इसके बाद एक खौफनाक और डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और सीन का इख्तिताम होता है। अगले सीन में स्कूबी डू और गैंग के बच्चों को एक वैन में दिखाया जाता है जिस पर वो स्कूल जा रहे होते हैं। फेरेड और डेफनी गाड़ी के आगे बैठते हैं और वेल्मा, शैगी और स्कूबी वैन के पीछे बैठते हैं। वेल्मा शैगी से कहती है तुमने रात इतनी देर से टेक्स्ट क्यों किया था? इस पर शैगी कहता है हमने रात को पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था इसलिए हम आपका वेट कर रहे थे। इसके बाद वेल्मा शैगी से रोमांटिक होने की कोशिश करती है मगर शैगी मना कर देता है। वेल्मा शैगी से कहती है डेफनी और फेरेड को हमारे बारे में जल्द ही पता चल जाएगा। इस पर शैगी कहता है मुझे इन दोनों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं, असल में स्कूबी को तुम्हारे और अपने बारे में बताना चाहता हूँ, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। वेल्मा को शैगी की बात बहुत बुरी लगती है। ऐसे बातें करते हुए वो स्कूल जा रहे होते हैं कि अचानक एक गटर खुलता है और इससे ग्रीन धुआं उठता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। फेरेड गाड़ी रोकता है और इन्हें खौफनाक आवाज सुनाई देती है और फिर वो किसी बड़े से मॉन्स्टर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। ये मॉन्स्टर इन पर हमला करता है जिससे बच्चों की पूरी गाड़ी हिलकर रह जाती है और फिर वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। फिर फेरेड गाड़ी से बाहर निकलता है। शैगी घबराहट में कहता है कि ये क्या था? इसके जवाब में फेरेड कहता है ये एक और मिस्ट्री है और ये स्कूल जाने से ज्यादा अहम है। इसके बाद सीन बदलता है। इसमें हम देखते हैं गैंग क्रिस्टल को केव्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो इन्हें 3 ड्रम और इनके इर्द गिर्द गिरा हुआ ग्रीन मटेरियल दिखाई देता है। इसी दौरान डेफनी की आवाज आती है कि मुझे कुछ मिला है। फेरेड कहता है ये क्लू हो सकता है। इसके बाद गैंग के बच्चों को कुछ टपकता हुआ सुनाई देता है। वो इसकी तरफ मतवज्जो होते हैं तो इन्हें 3 वर्कर्स छत पर चिपके हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद सीन तब्दील होता है और हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर तीनों वर्कर्स को लेकर जाता है और बच्चों को इससे दूर रहने के लिए कहता है। इस पर फेरेड कहता है मैं पुलिस ऑफिसर से बात करके आता हूँ और हम देखते हैं कि फेरेड एक वर्कर को उठा लाता है और गाड़ी में रख कर स्कूल के प्रोफेसर के पास ले जाता है। प्रोफेसर रेफ्लो इन्वेस्टिगेट करता है और कहता है कि ये बॉडी जिंदा है और इसे एक तरह की डिहाइड्रेशन हुई है। मुझे नहीं मालूम ये डिहाइड्रेशन किस तरह की है लेकिन ये टेम्परेरी है। प्रोफेसर मजीद कहता है कि कोकोन्स का मटेरियल ऑर्गेनिक लगता है और फेरेड को कहता है मुझे इसे मजीद एग्जामिन करने की जरूरत है। इसके बाद सीन तब्दील होता है जिसमें एक जोकर दिखाया जाता है जो फ्रूट मायर में आए लोगों को वेलकम करता है और फ्रूट मायर का तारुफ करवाता है। वेल्मा कहती है कि ये कैसा स्टफ है तो शैगी कहता है ये एक सीक्रेट किस्म का स्टफ है इसीलिए तो इसे फ्रूट मायर कहा जाता है। इसके बाद फेरेड कहता है अगर ये कोकोन्स ऑर्गेनिक हो जाएं तो ये क्रिस्टल कोव का मॉन्स्टर बन जाएगा। वेल्मा कहती है कोकोन्स दरअसल मल्टी सेल्ड म्यूटेशन है जो कि रेडिकल एलोट्रोप्स और रेडिकल इंपल्शन से बने हैं। इस डिस्कशन के बाद गैंग के तमाम बच्चे अपने घर चले जाते हैं और फेरेड मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए एक नए जाल के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद सीन तब्दील होता है। इसमें हम देखते हैं कि प्रोफेसर बॉडी को एग्जामिन कर रहा होता है कि इतने में इसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। प्रोफेसर वापस अपने कमरे में आता है तो एक खौफनाक और भयानक आवाज सुनाई देती है और सीन के आखिर में हम प्रोफेसर की बॉडी को ग्रीन मटेरियल के साथ छत पर चिपका हुआ देखते हैं। इसके बाद सीन बदलता है। इसमें फेरेड को एक रेडियो स्टेशन में दिखाया जाता है। गैंग के बाकी बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। फेरेड अफसोस कर रहा होता है कि बॉडी इसने चुराई थी लेकिन इसकी कीमत प्रोफेसर को अदा करना पड़ी और कहता है कि मुझे अपने पापा की बात मान लेनी चाहिए। इस पर गैंग के बाकी बच्चे कहते हैं कि हम सब ने मिलकर काम किया। डेफनी कहती है फेरेड तुम कभी भी अपनी जिंदगी में मिस्ट्री से दूर नहीं रह सकते। वेल्मा कहती है कि हमारे पास एक क्लू भी है इसलिए पीछे हटने के बारे में कोई सोचे भी ना। इसके बाद स्कूबी को वहाँ फ्रूट मायर दिखाई देते हैं और वो इसे खाने लगता है। गैंग के तमाम बच्चे इस पर किराहत का इजहार करते हैं तो शैगी भी जाकर फ्रूट मायर को टेस्ट करता है तो कहता है कि ये फ्रूट मायर है और कोकोन्स भी इसी मटेरियल से बने हैं। इस पर सब बच्चे हैरान होकर रह जाते हैं। इसके बाद डेफनी कहती है कि फ्रूट मायर और कोकोन्स का मटेरियल अगर एक सा है तो फिर शैगी इसकी बात काटता है और कहता है अगर हमें मॉन्स्टर को पकड़ना है तो हमारी अपनी फ्रूट मायर की दुकान होनी चाहिए। इस पर फेरेड कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि स्लाइम म्यूटेंट असल में मॉन्स्टर नहीं है। इसके बाद वो फ्रैंकिन्स फ्रूट मायर के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये शॉप सिर्फ 1 मंथ पहले ही बनी है और इससे पहले इसका नामो निशान नहीं था और इन्हें पता चलता है कि वो एक फीमेल कैंडिडेट को हायर करना चाहते हैं
इस पर शैगी कहता है कि हम में से अगर कोई लड़की इस शॉप में हायर हो जाए तो हमें मजीद जानने का मौका मिल जाएगा। इस पर फेरेट कहता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, और यूं गैंग के बच्चे मिस्टर फ्रैंकिन्सफ्रूटमायर को सस्पेक्ट करना शुरू करते हैं और इसी को इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं और एक जबरदस्त प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। और प्लान को मोशन में लाने के लिए गैंग के बच्चे स्कूबी और शैगी को फीमेल लिबास पहनाकर इन्हें शॉप में हायर करवा देते हैं और इस तरह इन्हें शॉप में बआसानी एंट्री मिल जाती है। अब रात के वक्त जब फ्रूटमायर की शॉप बंद होती है तो गैंग के बच्चे स्कूबी डू की बदौलत शॉप के अंदर दाखिल होते हैं और इन्वेस्टिगेट शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डेफनी स्टोरेज को खोलने की कोशिश करती है मगर वो नहीं खुलता। वो कीज लेने जाती है तो वहाँ स्कूबी और शैगी आ जाते हैं। स्कूबी अपने नाखून से स्टोरेज का लॉक खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वहाँ से मॉन्स्टर निकलता है और वो स्कूबी और शैगी के पीछे पड़ जाता है। तो शैगी और स्कूबी मॉन्स्टर से भागने लगते हैं। इसके बाद स्टोरेज के अंदर डेफनी, फेरेट और वेल्मा आ जाते हैं और साथ ही स्कूबी और शैगी भागते हुए आकर डेफनी के ऊपर गिर जाते हैं। स्कूबी और शैगी को देखने के बाद वो कहते हैं डेफनी कहाँ गई। इस वक्त डेफनी की आवाज नीचे एक होल से आती है कि मैं यहाँ हूँ और तुम लोगों को भी यहाँ नीचे आकर देखना चाहिए। गैंग के तमाम बच्चे नीचे उतरते हैं। फेरेट कहता है ये तो वही केव्स हैं जिनमें हम कल गए थे। इन केव्स में आकर इन्हें पता चलता है कि ये 20 यार्ड फ्रूटमायर से दूर है और डायरेक्टली क्रिस्टल कोव बैंक में खुलता है। फिर गैंग को पता चलता है कि असल में मॉन्स्टर मनी के पीछे है। इसके बाद फेरेट और गैंग के बाकी मेंबर्स ट्रैप को सेट करने लगते हैं कि इतने में मॉन्स्टर वहां आ जाता है। वो इसे ट्रैप की तरफ कामयाबी से ले जा रहे होते हैं कि अचानक ट्रैप गलत हो जाता है और गैंग के बच्चे खुद इसमें फंस जाते हैं। डेफनी बाहर रह जाती है। अब मॉन्स्टर डेफनी के पीछे पड़ जाता है। वो डेफनी को पकड़ने ही लगता है कि फेरेट फ्रूटमायर के स्प्रे से मॉन्स्टर को दीवार से चिपका देता है। इसके बाद फौरन ही वहाँ पर मेयर और पुलिस आ जाती है और बच्चों से पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। फेरेट इन्हें बताता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि मिस्टर फ्रैंकिन्सफ्रूटमायर हैं और इनका मकसद बैंक को लूटना है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर कहता है ये तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि मिस्टर फ्रैंकिन्सफ्रूटमायर तो ये हैं। गैंग के बच्चे इस पर बहुत ही हैरान होते हैं। फिर वो तजस्सुस से मॉन्स्टर का नकाब उतारते हैं तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं ये तो प्रोफेसर रेफलो हैं। फिर प्रोफेसर इनको बताता है कि ये सारा खेल मेरा ही रचा हुआ है ताकि मैं अमीर बन सकूं। डेफनी कहती है आपके पास तो टीचर की जॉब है, आपको ज्यादा मनी की क्यों जरूरत है और आपने ये प्लान कैसे बनाया। प्रोफेसर कहता है कि मुझे पता चला कि क्रिस्टल कोव केव्स सीवर से कनेक्टेड हैं। फिर एक दिन मैं क्लास के लिए कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर रहा था तो मुझे पता चला बैंक केव्स के नीचे खुलता है। फिर मैंने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। फ्रूटमायर ने मुझे सीवर की तरफ सीक्रेट एक्सेस दी तो मैंने सोचा कि क्यों ना बलून बॉय को क्राइम के लिए फ्रेम किया जाए। मैंने अपने आप को छत पर इसलिए चिपका दिया कि किसी का भी ध्यान मेरी तरफ न जाए और कोई भी मुझे शक की नजर से न देखे, लेकिन तुम लोगों ने मेरा सारे का सारा प्लान ही बिगाड़ दिया। इसके बाद डेफनी को जो लॉकेट मिला था इसके बारे में प्रोफेसर से सवाल करती है तो प्रोफेसर कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। इसके बाद पुलिस ऑफिसर बच्चों का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने शहर के बैंक को लूटने से बचा लिया। इसके बाद बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं लेकिन डेफनी एक कोने में उदास बैठी होती है। फेरेट इसके पास जाता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ है। डेफनी कहती है अगर ये लॉकेट प्रोफेसर का नहीं है तो फिर किसका है। इतने में एक कॉल आती है। कॉल पर मौजूद शख्स की आवाज भयानक होती है। वो कहता है तुम लोग मुझे मिस्टर ई कह सकते हो। वो कहता है कि तुम लोगों को लॉकेट केव से बाहर नहीं लाना चाहिए था, इस वजह से क्रिस्टल कोव की कर्ज का सच बाहर आ सकता है। मजीद वो शख्स कहता है कि अब असल मिस्ट्री शुरू हुई है। तमाम बच्चे डर जाते हैं और इसी तरह एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। मिस्टर ई कौन है और क्रिस्टल कोव की कर्ज की सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।